ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟਰਮਸ। ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੇਟਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬੇਟਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਓਨਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਅਦਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਓਨਰ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਪੀਟਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੈਸਟਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਸ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਡਰਾਇੰਗਸ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ। ਬੇਟਾ ਉਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵਿਡਰੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਵਿਡਰੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼, ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਓਨਰ ਨੇ ਗੁਡਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈ ਫੋਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ, ਆਪਣੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਗੁਡਸ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਫੋਰ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਊਸ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਵਿਡਰੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ? ਬੇਟਾ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਬੇਟਾ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ। ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੇਲ ਸਮਝੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਡਸ ਔਰ ਐਸਿਡ, ਆਪਣਾ ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਐਸਿਡਸ। ਬੇਟਾ ਸੁਣਨਾ, ਬੇਟਾ ਗੁਡਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਫੋਰ ਦਾ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਐਸਿਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਫੋਰ ਉਸਨੂੰ ਲੌਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਡਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਰੀਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਸਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਲਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੇਲ ਲਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ। ਤਾਂ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਟਰਮਸ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਡਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਗੁਡਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਚੇਜ਼, ਸੇਲ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ, ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰਚੇਜ਼। ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗੁਡਸ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂ ਫੋਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਡ ਜਾਂ ਰੈਂਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਫੋਰ ਦਾ ਰੀਸੇਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ। ਬੇਟਾ ਸੇਲ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਗੁਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਸਿਡ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਗੁਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਡਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੁਡਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਸੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਡਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਔਰ ਸੇਲ, ਐਸਿਡ ਲਈ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ।
उस तो बाद आ जाओ बेटा अपना डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट थोड़े दो तरह का होंगे, अपना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट मिलता जो तुम बल्क में कोई चीज़ परचेज करते हो। बेटा मान के चलो अगर तुम एग्जाम्पल लो, तुम एक शर्ट ली एंड अगर तुम 10 शर्ट लईਆਂ, ऑफकोर्स अगर तुम 10 शर्ट लईਆਂ तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ अपना प्राइस घट जाएगा। तो ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰ डिस्काउंट ਦਿੰਦਾ ਹੈ बल्क ਵਿੱਚ परचेज ਕਰਨ ਤੇ बेटा उसਨੂੰ बोलते हैं ਆਪਾਂ ट्रेड डिस्काउंट। वैरी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा कैश डिस्काउंट है किस तो जो थोड़ी पेमेंट खड़ी है उस तो अर्ली टाइमली पेमेंट करवा ली, तुम किसी को डिस्काउंट दे रहे हो। बेटा मान के चलो किसने आफ्टर 1 ईयर तो पेमेंट करना है, तुम उसको ऑफर किया अगर तुम मैंने अज ही आफ्टर 2 मंथ पेमेंट कर देगा तो मैं उसको डिस्काउंट देवांगा। तो बेटा हो गया कैश डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट हो गया जो थोड़ा अपना बल्क में परचेज करने होंगे है। कैश डिस्काउंट हो गया जो अपना टाइमली पेमेंट लिए अलाउ किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बेटा ट्रेड डिस्काउंट थोड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट भी रिकॉर्ड नहीं होता एंड कैश डिस्काउंट थोड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट भी रिकॉर्ड होता है। बेटा MCQ बन सकता है इसके ऊपर। बेटा अगे आता अपना रिबेट। बेटा रिबेट की होंदा है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को छड़ के किसी भी तरह का तुहानूं डिस्काउंट मिले और रिबेट है। फॉर एग्जाम्पल देखो पुअर क्वालिटी ऑफ कोई गुड्स सीगा तो अपना सैलर ने कोई डिस्काउंट देता तो उसनूं असीं बोलांगे रिबेट। अगे आ जाओ बेटा परचेज रिटर्न। तुसीं इहदा सैकेंड नेम भी याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट। रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है जी। जो तुसीं परचेज किया सी वो आउटवर्ड तुसीं बाहर अपना रिटर्न करता, मतलब उसी बंदे नूं अपना वापस करता। परचेज रिटर्न बेटा इहदा सिंपल है, तुसीं किसी भी कारण आपां अपना रिटर्न कर सकते हो। डिफेक्टिव गुड्स होने करके, क्वालिटी नहीं है, डिले इन सप्लाई करके, ठीक है जी। तुसीं की कर सकते हो अपना परचेज, उसनूं परचेज रिटर्न बोलते हैं। प्लस सैकेंड नेम जरूर याद रखना है रिटर्न आउटवर्ड। बेटा जो ये डेबिट नोट लिखा हुआ है इसनूं मैं क्रेडिट नोट के नाल एक्सप्लेन करांगा, जस्ट 2 मिनट वेट करो। बेटा अगे आंदा है सेल रिटर्न। बेटा सेल रिटर्न मतलब रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। जो तुसी एज अ बिजनेसमैन जो सेल किया सी कस्टमर ने थोनों रिटर्न करता, कस्टमर ने थोनों रिटर्न करता। वंस के रीज़न कोई भी हो सकता है बेटा, डिफेक्टिव गुड्स, लेट सप्लाई ऑफ गुड्स, अपना ड्यू टू लेट सप्लाई ऑफ गुड, ठीक है जी। तो ये अपना हो गया सेल रिटर्न। सैकेंड नेम जरूर याद रखना है बेटा इसका रिटर्न इनवर्ड। बेटा हूँ बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट बेटा इन्होंने बारे सुनना हुण ध्यान नाल। बेटा जो तुसीं परचेज रिटर्न मतलब जो तुसीं समान परचेज किया रिटर्न करते हो उदों एक नोट इशू होंदा डेबिट नोट, ठीक है जी। जो तुसीं अपना इशू किहदे द्वारा होंदा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा बेटा इशू किया जाता अपना परचेजर के द्वारा। ये किस दे द्वारा बेटा इशू किया जाता है परचेजर के द्वारा जो गुड्स रिटर्न कर रहा है। बेटा ये लिखा होंदा है कि किन्नी गुड्स वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ गुड्स इज़ द रीज़न क्या रिटर्न करन दा। बेटा हुण आंदा है क्रेडिट नोट, ध्यान नाल सुनना। कहंदे तुसीं जो गुड्स किसी तो रिसीव करते हो बेटा, जो एज अ बिजनेसमैन तुसीं कस्टमर तो गुड्स रिसीव कीती तुसीं उहदे नाम ते क्रेडिट नोट इशू कर दोगे बेटा। हुण तुसीं चलो अगे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट किन्नी कॉपी 2 कॉपी विच इशू होएगा बेटा। 1 कॉपी सेंड टू द कस्टमर, अनदर कॉपी रिटेन कर लांगे। बेटा इन्हूं एक होर एग्जाम्पल नाल समझो ध्यान नाल। देखो बेटा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, मान के चलो तुसीं कोई चीज़ परचेज की बेटा, तुसीं कोई चीज़ परचेज की, ठीक है जी। थोनों पसंद नहीं आई तुसीं उसनूं वापस कर रहे हो, थोनों पसंद नहीं आई तुसीं उसनूं वापस कर रहे हो। तुसीं की इशू करोगे डेबिट नोट बेटा, तुसीं की इशू करोगे डेबिट नोट। तो जिसनों बेटा तुसीं वापस कर रहे हो मतलब जिस तो तुसीं परचेज की सी वो कि तुहाडे नाम ते इशू करेगा क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट होंदा बेटा परचेज रिटर्न वाले, क्रेडिट नोट बेटा तुहाडा होंदा है सेल रिटर्न वाले, याद रखना बेटा। अगे आंदा बेटा स्टॉक। बेटा समटाइम की होंदा जो तुसीं गुड्स परचेज करते हो रीसेल करन लई, बट वो रीसेल होंदी नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर। मान के चलो अपना ईयर होंदा अपना 1 अप्रैल टू 31 मार्च कि 31 मार्च को कुछ गुड्स रीसेल नहीं हुई, वो अनसोल्ड रह गया बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ गुड्स अनसोल्ड रह गई 31 मार्च ਨੂੰ उसनों असीं बोलते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक। अगर मान के चलो 31 मार्च 2019 है तो वही जेड़ा इस समय 31 मार्च 2019 स्टॉक रह गया उसनों बोलांगे बेटा आप क्लोजिंग स्टॉक। सेम बेटा 1 अप्रैल 2019 बेटा असी इसनों की बोल देंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक। ध्यान ना सुनना बेटा थोड़ा ईयर है 18-19। अगर मान के चलो 19 के एंड भी कुछ गुड्स थोड़ियाँ अनसोल्ड रह गई उसनों असी की बोलांगे बेटा क्लोजिंग स्टॉक। तो उसी गुड्स में बेटा 1 अप्रैल 2019 असी की बोल देंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक जो तो अपना नैक्सट ईयर बेटा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, साफ साफ लिखा हुआ है बेटा थोड़ा इत्थे
कि गुड्स आर परचेज फॉर द परपस ऑफ रीसेल बट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग है सम आर अनसोल्ड। बेटा इसनों ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इसनों ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ बेटा ओपनिंग स्टॉक। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म ट्रेड रिसीवेबल। बेटा ट्रेड रिसीवेबल कंबीनेशन है थोड़ा अपना डैटर और बिल रिसीवेबल का। बेटा पहला उसी डैटर और क्रेडिटर समझो, फिर थोड़ा मैं बिल रिसीवेबल बिल पेएबल। बेटा 12 13 मैं थोड़ा टर्म कट्ठियां समझाना, ध्यान ना सुनना। बेटा डैटर वो परसन है जिस परसन नूं तुसीं अपना कोई भी पैसा उधार दिता पिया या तुसीं जिसनूं उधार ते गुड्स दित्तियां पईयां जिस तो तुसीं पैसा रिकवर करना है। डैटर वो परसन है जिस परसन नूं तुसीं उधार ते पैसा दिता पिया या उधार ते कोई गुड्स बेची पई है जिस तो तुसीं पैसा रिकवर करना है, तो वो परसन हो गया बेटा थोड़ा डैटर। बेटा हुण आंदा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग दी टर्म्स है दो, हर चैप्टर में ये दो वर्ड यूज़ होणगे बेटा, डैटर एंड क्रेडिटर। बेटा क्रेडिटर वो परसन है जिन्ना तो तुसीं उधार ते पैसा लिया पिया या जिन्ना तो तुसी अपना क्या उधार ते कोई चीज़ परचेज की पई है, मतलब जिन्ना नूं तुसी पैसा वापस करना है। तो क्रेडिटर बेटा वो परसन हो गए जिन्ना तो तुसी उधार लिया पिया या उधार ते चीज़ लई पई है। डैटर वो परसन हो गए जिन्ना नूं तुसी उधार ते समान वेचिया पिया। याद रखना बेटा। बेटा हुण आंदा अपना बिल रिसीवेबल ते बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल बिल पेएबल। बेटा देखो अगर मान के चलो एक डॉकूमेंट है, मैं किसी शाम बंदे ने कोई चीज़ सैल की है अपना उधार ते। बेटा उरे एक मैं डॉकूमेंट लिखांगा किन्ने दी चीज़ सैल की है, किन्ना इंटरस्ट है, शाम मैनू किन्नी देर बाद वापस करेगा, तो शाम इस दे ऊपर डॉकूमेंट ऊपर साइन कर देगा। बेटा ये जिहड़ा डॉकूमेंट है मेरे लिए जिसने पैसे लेने हैं मेरे लिए हो जाएगा बेटा बिल रिसीवेबल। मेरे लिए डॉकूमेंट की हो जाएगा बिल रिसीवेबल। बेटा जिसने पैसे देने हैं उसके लिए डॉकूमेंट की हो जाएगा बेटा बिल पेएबल। उसके लिए डॉकूमेंट की हो जाएगा बिल पेएबल। बेटा ये थोड़ा डैटर क्रेडिटर बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल दे टर्म्स क्लीयर कीतियां ने। बेटा हुण डैटर और बिल रिसीवेबल का टोटल होंदा अपना ट्रेड रिसीवेबल एंड क्रेडिटर और बिल पेएबल का टोटल होंदा बेटा अपना ट्रेड पेएबल। ठीक है जी। अगे आंदा बेटा बैड डैट। बैड डैट जो तुसी डैटर तो पैसा लेना सी बेटा हुण रिकवरेबल है किसी भी रीजन करके बेटा वो थोड़े हुण पैसे नहीं आ सकते तो असीं उसनूं बोल देंगे बैड डैट कि थोड़े बेटा पैसे डुब गए हुण इरिकवरेबल है वो तुहानूं रिकवर नहीं हो सकते बेटा। बेटा अगे आंदा पेन स्लिप। बेटा पेन स्लिप का मतलब की है जो तुम बैंक के भी डिपॉजिट करवाने हो कैश या चैक, बेटा तुहानूं कुछ अपना स्लिप भरनियां पैंदियां जो तुम अमाउंट ऑफ कैश लिखते हो अपने नोट सिग्नेचर सब कुछ करते हो बेटा उसनूं बोलते हैं बेटा पे इन स्लिप। बेटा उस तो बाद आंदा कि जी कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा इस अगर जेडे पटवारी एग्जाम लिए सुन रहे हैं इससे थोड़ा लास्ट टाइम अपना न्यूमेरिकल भी आया सीगा कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिससे एक अलग वीडियो भी दे दांगा बेटा मैं। बेटा ये कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होंदा है जो तुसी अपनी चीज़ वेचती है जो तुसी चीज़ होल्ड की है उसनूं बनाने ते कितना खर्चा आया सी, उसदे रॉ मटीरियल ते कितना दा आया सी, फिनिश गुड प्रोड्यूस करन ते कितना खर्चा आया उसनूं बोलदे आपां कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बड़े दा फार्मूला होंदा है तुहानूं अपना सम दे विच अपना ओपनिंग स्टॉक गिवन होंदा है साल दे शुरू वाला नैट परचेज। बेटा परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नैट परचेज का मतलब की होंदा है परचेज माइनस परचेज रिटर्न सम दे विच गिवन होंदा है बेटा। डायरैक्ट एक्सपेंस। बेटा इससे वंस अगेन तुहानूं नैक्सट वीडियो दसांगा डायरैक्ट एक्सपेंस की होंदे ने। वैसे अपना याद रख लो फैक्ट्री नाल रिलेटेड खर्चे होंदे हैं बट आपां बहुत नैरो डेफिनेशन है वाइड भी तुहानूं बाद भी दसांगा बेटा। बेटा क्लोजिंग स्टॉक जो साल दे एंड विच बच गया जो तुसी ये फार्मूला लगा दोगे बेटा तुहाडे कोल निकल आएगा कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि जिहड़ी चीज़ तुसी वेची उसदा मेरा बनाने ते कितना खर्चा लग गया सी। बेटा अगे आंदा है एसिड। बेटा एसिड देखो की है, एसिड अपना की है देखो कोई भी प्रॉपर्टी जो इंटरप्राइज दी है। बेटा काफ़ी तरह के एसिड होंगे जो फर्स्ट अपने फिक्स एसिड। बेटा फिक्स एसिड जो अपने परमानेंट नेचर के होंगे जो तुसी नॉर्मली उन्होंने कैश भी कन्वर्ट नहीं करते बेच के, जिवें प्लांट मशीनरी हाउस फर्नीचर जिन तुसी यही नहीं कि हर दिन बेटा बेचते रहते हो। बट हुण इहदे दो पार्ट है टेंजीबल और इनटेंजीबल। वंस अगेन बेटा लास्ट टाइम तुहाडा पटवारी एग्जाम दे विच इस ते MCQ आया सीगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ इंटेंजीबल एसिड। चलो आप डिस्कस करते हैं। बेटा टेंजीबल एसिड है जो तुसी देख सकते हो अपना छू सकते हो सोन जिमें प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग सोन। बेटा इनटेंजीबल एसिड जो फिजिकल नेचर नहीं है फॉर एग्जांपल गुडविल पेटेंट कॉपीराइट। बेटा जिवें तुहानूं मैं एक्सप्लेन करदा गुडविल बारे
बेटा गुडविल होंदी है रैपूटेशन ऑफ द फर्म। अगर तुसी किसी ने कहो कि उस बिजनेस की बहुत गुडविल है, तुहानूं उत्थे कोई चीज़ परचेज करनी चाहिए है, तो उस चीज़ लिए वर्ड वटिया जांदा गुडविल। रैपूटेशन जो एक बिजनेस ने अपना नाम कमाया दैट इज़ अ बेटा गुडविल। ठीक है जी। उस तो बाद आ जाओ बेटा अपना फैक्टिशियस एसिड। बेटा ये वो एसिड है जिन्होंने यूज़ करते करते इन्हां दी वैल्यू लॉस होंदी रहिंदी है, एक टाइम ते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जिवें बेटा तुहाडे माइनस ओल्ड ऑयल वैल एक टाइम ते आके अपना कि जिन्ना तुसीं इन्हां विचों अपना निकालोगे एक टाइम ते आके अपना बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जिन्हों असीं फैक्टिशियस एसिड भी बोलते हैं बेटा। अगे आंदा है बेटा तुहाडे करंट एसिड। देखो बेटा फिक्स एसिड से जो तुसी लॉन्ग यूज ਲਈ टर्म ਲਈ यूज़ करते हो परमानेंट नेचर च ਹੁੰਦੇ ਆ। बेटा करंट एसिड है जो तुसी 1 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ बेटा। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ एग्जांपल होगी तुसी ਡੈਟਰ ਤੋਂ जद मर्जी पैसे ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, बिल रिसीवेबल दस के आया सी, या कोई भी ऐसा खर्चा जिस अपना एसिड जिसमें तुसी 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैश कन्वर्ट कर ਲੈਂਦੇ हो बेटा, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ करंट एसिड। बेटा फैक्टिशियस दोबारा आ गया, आप ऊपर डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। बेटा ये एग्जांपल भी तुसी देख सकते हो अपना एडवरटाइजमेंट एक्सपेंस। बेटा इसका मतलब की होंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। बेटा एक्चुअल में एसिड नहीं होंगे, ये अपना कोई फिजिकल फॉर्म च नहीं होंगे। इन्हों का इसका दूसरा नाम भी याद रखना बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा ये एसिड का बेनीफिट थोड़ा फ्यूचर च मिलना होंगे। अगर मान के चलो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है बेटा, इसका मतलब बिजनेस शुरू होने तो पहला वाले खर्चे, इन्हों का बेनीफिट आपको बाद चो मिलेगा। बेटा एडवरटाइजमेंट एक्सपेंस है, तुसी एडवरटाइजमेंट पर खर्चा करता बट इसका बेनीफिट आपको बाद चो मिलेगा, तो ये होंगे बेटा थोड़े फैक्टिशियस एसिड जिन्होंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। बेटा अगे आंदा डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन का मतलब है एसिड की वैल्यू डाउन होना, किसी भी करके यूसेज करके, पासेज ऑफ टाइम करके, एक्सीडेंट करके, आउट ऑफ डेट किसी भी रीज़न करके थोड़ी एसिड की वैल्यू डाउन होना। बेटा मान के चलो थोड़ा मोबाइल है या मशीनरी है, बेटा जिमें जिमें तुसीं इसनूं यूज़ करते हो इसकी वैल्यू डाउन होंदी रहिंदी है। अगर मान के चलो तुसीं कोई मोबाइल 50,000 का परचेज़ किया है, इसकी नैक्सट ईयर होर डाउन हो जाएगी, उस तो नैक्सट ईयर होर डाउन हो जाएगी, तब बेटा इसनूं बोलते हैं आप डेप्रीशिएशन। बेटा अगे आंदा लाइबिलिटी। अगर मैं एक लाइबिलिटी नूं प्रॉपर पंजाबी टर्म देवां तो आप कह सकते हैं बेटा देनदारियां, कि कितना पैसा देन वाला पिया बिजनेस का। ठीक है जी। ये बेटा वंस अगेन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी होंदा है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर तुसीं बेटा कोई भी पैसा 12 मंथ तो ज़्यादा लिया पिया, 1 साल तो वध लिया पिया या 1 साल तो बाद पे करोगे, उन्होंने बोलते बेटा आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो होंदा है बेटा जो तुसीं 1 साल दे विच ही कन्वर्ट कर दो, 1 साल दे विच ही पे कर दो। करंट लाइबिलिटी वो है जो तुसीं 1 साल दे विच ही तुसीं की कर दो बेटा, पे कर दो। अगे बेटा एक है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये तुहानूं मैं समझाना, आ जाओ तुसीं। बेटा एक अकाउंटिंग इक्वेशन होंदी है अपनी, मतलब तुसीं कह सकते हो कि जो तुहाडे बिजनेस दे विच बेटा एसिड लगे पे ने, मान के चलो तुहाडे बिजनेस दे विच 10,000 दे एसिड लगे पे ने। बेटा पैसा 2 तरीके नाल आंदा है, या तो तुहाडा खुद का होएगा जिन्हों बोलते बेटा आप कैपिटल, कि जो बिजनेस विच ओनर ने खुद पैसा इन्वैस्ट किया है, या तुसीं बेटा ये उधार लिया होएगा जिन्हों आप कह सकते हैं लाइबिलिटी देनदारियाँ, कि अगर तुहाडे बिजनेस में 10,000 का एसिड है, या तो तुसीं पैसा खुद इन्वैस्ट किया होएगा मान के चलो 8,000 का, या तुसीं किया तुहाडी कोई दो या तुसीं उधार लिया होएगा 2,000। तो ये बेटा एक अकाउंटिंग इक्वेशन होंदी है जिसका मतलब होंदा है कि जो तुहाडा अपना एसिड है वो तुहाडी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है। बेटा लाइबिलिटी नूं असीं आउटसाइडर इक्विटी भी कह दिंदे आ, कैपिटल नूं बेटा असीं ओनर इक्विटी भी कह दिंदे आ। तां सो अपना बेटा ओनर इक्विटी प्लस आउटसाइडर इक्विटी इज इक्वल टू बेटा एसिड हो गया, कि जो तुहाडे बिजनेस में एसिड लग्या पिया है, या तो तुहाडे पैसे का ओनर इक्विटी, या तुसीं अपना बाहरों उधार लिया डैट इज़ द आउटसाइडर इक्विटी। ठीक है बेटा, चलो बेटा इसनूं एक बार रिवीजन कर लेना, कोई भी डाउट होया तुसीं कमेंट में पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक्स।